Last time we saw electromagnetic radiation. In today's class, we are going to do something very interesting. ठीक है? We say electromagnetic radiation, बराबर? ठीक है? We have been calling it electromagnetic radiation. बच्चों, we are treating it as a particle, right? Or we can say some radiation is coming, right? हम अपन बोल सकते हैं कि ट्यूबलाइट से कुछ रेडिएशन निकल रहा है. Now, what do I mean by it? And when I say निकल रहा है, मतलब कैसे निकल रहा है और कितने एनर्जी के साथ निकल रहा है बेटा. तो एक क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं, राइट? सो लेट अस डू वन थिंग बच्चों. अपन एक हॉट आयरन बॉल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं. गर्म करते हैं इसको. विल हीट अप. हम गर्म करते हैं इसको. गरम करेंगे जबरदस्त लेवल पे गरम करेंगे बच्चों. ठीक है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज व्हेन यू हीट इट अप, जब आप इसको गर्म करोगे बच्चों, इट इज गोइंग टू emit electromagnetic radiation. And what will you observe is this iron ball changing color. It will change its color from like dull red, red, yellow, orange. It will change its color बच्चों. And when I say it changes its color, that means the radiations are in the form. Like I will give you an example. मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूँ, तुमको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. So मैंने क्या बोला, ये गर्म है तो ये अपना कलर रेड, डल रेड एकदम रहेगा, ब्राइट रेड उससे येलो, ऑरेंज, फिर व्हाइट, ऐसे चेंज करेगा. मतलब डायरेक्ट वो रेड से व्हाइट नहीं हो जाएगा बच्चों. इन बिटवीन देयर विल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल हैपन. येलो, ऑरेंज. मतलब जो तुम्हारे रेडिएशन है बच्चों, इट विल नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट, राइट? It will convert in a particular form, in a particular manner. So what we say is there is something called as energy packets. There is something called as quanta या energy packets, okay, that is associated with the electromagnetic radiation. ठीक है? So what I say, electromagnetic radiation always travel in the form of quanta energy packets. अब बच्चे confused. हमने तो सर एक ही सुना है, पार्ले जी. जी माने जीनियस, बस वो एक ही पैकेट हमने सुना है आज तक. ये क्वांटा क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स क्या होता है? डेफिनेटली इन क्लास 12th you will see it in much detail, but I want to give you all a rough idea about it, how it actually works. Now what it is, that I have to tell you all, right? So this is one thing, right? One of the thing that you know. But there is one more thing that you should know, and then we'll come back to this again, okay? One more thing that we should know. There is one very favorite and a very famous thing जो तुमको 12th में आएगा डिटेल में, एकदम डिटेल में, एकदम. ठीक है? जिनको अभी पढ़ना हो, मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, यू ऑल कैन सी इट. जिनको अभी इंटरेस्ट हो पढ़ने में वो टॉपिक, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ उस टॉपिक का. इट्स अ बिग टॉपिक बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बेसिकली वो होता क्या है, आई टेल यू. व्हाट वी डू इज वी डू अ वेरी सिंपल थिंग बच्चों. वी डू अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. आई टेक अ मेटल सरफेस. वी टेक अ मेटल सरफेस. और मेटल रहेगा तो क्या रहेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा. और मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन देना, ये सब तुमको पता है. अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या क्या आता है भैया, सब कुछ आता है. यू कैन emit ultraviolet rays or whatever you want to. विजिबल चाहिए तो विजिबल कर सकते हो. तो what was observed is बेटा something very interesting. बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा. There is something very interesting I am going to show you all. होगा क्या if I emit or if I throw electromagnetic radiation, ठीक है, on this metal surface, something extraordinary is going to happen बच्चों. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कुछ एनर्जी होगी बच्चों, and that energy will be equal to h nu. बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
it will have some energy which is equal to h nu. E stands for energy, h stands for Planck's constant, and nu stands for frequency. This radiation comes with a certain frequency, bachcho, and the energy associated with it will be h nu. Bachcho, remember this thing very, very clearly. When I say electromagnetic radiations are coming, that means what? An energy is coming. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसमिट करेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा. दिस इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये इफेक्ट को हम बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये था इसका फंडामेंटल आइडिया. लेकिन यहाँ पर बच्चों बहुत सारे कैच है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें है जो मैंने तुमको नहीं बताई. पहली चीज, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कराएगा. हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कराएगा. जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है बच्चों, ठीक है, वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में हेल्प नहीं करेगा. ओनली स्पेसिफिक रेडिएशंस, ठीक है, ओनली स्पेसिफिक रेडिएशंस जिनके पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो, पर्टिकुलर एनर्जी हो, वो ही इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म्स में बता रहा हूं तुमको. नेक्स्ट ईयर 12th में हम लाइट की बात करेंगे, फोटॉन्स की बात करेंगे. तो अभी मैं वो सब बात नहीं कर रहा, मैं जनरल चर्चा कर रहा हूँ, एकदम बेसिक चर्चा. तो इसे बहुत सारी छोटे चीजें मैं तुमको नहीं भी बताऊंगा, लेकिन तुमको मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा. ठीक है, अभी कुछ कुछ बातें बतानी इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ, क्योंकि बाद में तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे को ऑलरेडी आता है, तो तुम्हारा उस टाइम पे तुम्हारा एकदम पक्का हो जाएगा. अभी तुमको मैं आइडिया दे देता हूँ, ठीक है. तुमको पूरी तरह से अभी नहीं समझेगा, लेकिन तुमको मैं आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया. ठीक है, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बच्चों एक रेडिएशन आया, मेटल सरफेस पे हिट किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले. आपने तो बोला भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपने अभी बोला, जस्ट बोला अभी. लेकिन नहीं बेटा, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल नॉट emit इलेक्ट्रॉन्स. बच्चों बात को समझने की कोशिश करना. पहला चीज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल है न्यू नॉट. बच्चों इसका मतलब क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which can lead to photoelectric effect, which can or which may lead to, which may. अब मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हो, लेकिन मैं तुमको जनरल चर्चा बताता हूँ. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, कोई लाइट आई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, और मैंने क्या बोला, जब रेडिएशन मेटल सर्फेस पे आएगा वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा, बराबर के नहीं? ये मैंने तुम लोग को बोला एकदम सिंपल तरीके से. लेकिन बच्चा लोग एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, इस केस में अगर कोई रेडिएशन आ रहा है, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन आ रहा है, तभी भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे बच्चों. निकलने चाहिए ना, रेडिएशन आ रहा है मतलब एनर्जी के साथ आ रहा है. एनर्जी कौन सी है? एच न्यू. तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगी. इलेक्ट्रॉन एकदम चार्ज अब तो मैं निकल जाऊंगा यहां से. लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बच्चों एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए रेडिएशन को. अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है किसी रेडिएशन की जिससे वो आ रहा है अंदर, दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी बच्चों इट इज पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन्स निकले. तभी ही वो निकल सकता है, उसके पहले वो नहीं निकल सकता, भले तुम कितना भी कुछ भी कोशिश कर लो. फिर भी मैंने लिखा है मे बी, ये तुमको बताऊंगा मैं आगे जब वो चैप्टर अपन 12th में पढ़ेंगे. ये मे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है.
बहुत सारे लोग इधर मिस कर देते हैं ये वर्ड। अब तुमको मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ऐसा लगेगा कि क्या नॉर्मल बात है, लेकिन तब तुमको जब बताऊँ तुम लोग अरे बाप रे ऐसा भी होता है इसके लिए। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, ये सब भूल जाओ, चलो मैं भूल जाओ, विच लीड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब इतना याद रखना। तो मैंने क्या बोला, एक रेडिएशन जो आ रहा है उसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसके बाद ही बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुमको समझ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ के डाउट है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुमको समझ में आ गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बच्चों वर्क फंक्शन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। रेडिएशन आया, उसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन बच्चों वी शुड नॉट मिस वन थिंग, माना फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, चीजें आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन एक और बात याद रखना, कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकालने के लिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन की होनी चाहिए उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और द मिनिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकालने के लिए एनर्जी चाहिए ना बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं नहीं तुम मुझे फूक मारो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होएगा, फूक मारोगा निकलेगा नहीं ना, कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए रहेगा ना। अरे रेडिएशन आ रहा है बच्चों एनर्जी के साथ, एच न्यू के साथ, बराबर के नहीं, आ रहा है माना, लेकिन अगर एनर्जी कम है तो क्या करेंगे फिर तुम लोग, तो एक मिनिमम एनर्जी एक रिकॉर्ड होता है, हर एक मेटल का डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। तो हर एक मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको ऑब्वियसली डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अपन, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा तुम लोगों को। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज रखी बहुत ज्यादा, तो वर्क फंक्शन का सिंबल या तो तुम ऐसे कर सकते हो या तो डब्ल्यू लिख सकते हो, और वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी है ना बच्चों, तो इसका फॉर्मूला इज एच न्यू, सेम एच न्यू जैसा, लेकिन यहां पर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं अपन, तो एच न्यू नॉट लिख देते अपन यहाँ पर, बराबर के नहीं, वी विल राइट एच न्यू नॉट हियर। तो बच्चों अब बताओ, अब बताओ होगा क्या, कुछ एनर्जी आएगी, एच न्यू एनर्जी आ रही है, बराबर के नहीं, वो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी दो तरीके से खर्चा होगी। पहले तो इलेक्ट्रॉन को मनाने के लिए, तुम कोई प्लान बना रहे हो, कोई पिकनिक का प्लान बना रहे हो, पहले तो तुमको मनाना पड़ेगा अपने दोस्त को कि भाई चलो भाई चल ऐसा कुछ है, मजा आएगा बहुत ज्यादा, वो मान भी जाएगा, फिर वो आलस करेगा कि नहीं, मतलब जाने का दिन जब आएगा तब बोलेगा, आलस करेगा नहीं यार कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा है, तो उसको भगाने के लिए, उसको उठाने के लिए, फिर वो ट्रिप के लिए वो करने के लिए, बस तक लेके जाने के लिए, ट्रेन तक लेके जाने के लिए एनर्जी चाहिए रहेगी। तो जो तुम्हारी एनर्जी है बच्चों वो दो तरीके से यूज हो रही है। तुम्हारी जो एनर्जी है बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन, देखो रेडिएशन आया, मेटल सरफेस पे हिट किया, ठीक है, रेडिएशन आ रहा है, मेटल सरफेस पे हिट किया, हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट तो हो गए, वर्क फंक्शन उसने पार कर दिया, मिनिमम एनर्जी उसने पार कर दिया, लेकिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन को निकालना भी तो पड़ेगा ना यहाँ से, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए जिससे वो भागे, दौड़े, कूदे, समझ रहे हो। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तुम्हारी जो एनर्जी है बच्चों, तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी जो एनर्जी है बच्चों, दो तरीके से खर्चा होगी। पहले तो वर्क फंक्शन में खर्चा होगी, इसको मैं वर्क फंक्शन को डब्ल्यू लिख देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रेडी करने में, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, ठीक है। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, वर्क फंक्शन का क्या होता है, एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर के नहीं।
therefore h nu minus h nu naught will be equal to half mv square. भैया क्या चालू है जीवन में ये मेरे, व्हाट इज दिस हैपनिंग द? तो सिंपल है बेटा, तुम जो भी एनर्जी दे रहे हो वो दो तरीके से खर्चा होगी। पहले तो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए रहेगी वो मेटल सरफेस से निकलने के लिए। अरे बाबा घर वाले परमिशन देंगे तब जा पाओगे ना पिकनिक में। तो पहले तो घर वालों को मनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन मेटल में रह रहा है इतने सालों से, जिंदगी भर तक सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा चल रहा है, वो क्यों जाएगा? तो पहले तो घर वालों को मनाना पड़ेगा कि भाई सखी मैं जा रहा हूँ, पिताजी मैं जा रहा हूँ, माता मैं जा रहा हूँ, चाचा ताऊ चाची जा रहा हूँ, जाने दो, बीच में अड़ंगा मत डालना, पकाना मत, मेरे को जाने का है। तो मिनिमम एनर्जी उनको लगानी पड़ेगी मनाने के लिए। फिर मान गया तो मिनिमम वर्क एनर्जी वर्क फंक्शन लगेगा। फिर मानने के बाद भागना भी तो पड़ेगा ना, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, उसके लिए भागना पड़ेगा। ठीक है, दिल वाला दुल्हन लेके जाएगा, तुमने मूवी देखी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए रहेगी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलना प्लस बाहर भागना, ये दो तरीके से एनर्जी तुम्हारी यूज होगी। और कौन सी एनर्जी यूज होगी बच्चों? जो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म से आ रही है, मेटल पे टकरा रही है। और ये जो इक्वेशन अपने को मिला बच्चों, ये आइंस्टाइन ने डिराइव किया था, इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये 12th में तुमको बहुत डिटेल में आएगा बच्चों, इसके ग्राफ आएंगे तुमको, इसका और डिटेल आएगा, है ना। ये भी एक्चुअली ना मैंने गलत लिखा है, बट तुमको मैं कंफ्यूज नहीं करना है। एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, ये एक्चुअली सही है। एग्जाम में तुम्हें लिख कर आओगे 110% मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इधर एक छोटा सा लॉजिक और आता है जो तुमको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा बच्चों। अब बताऊंगा तो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और 2-3 घंटे तक चैप्टर चलेगा ये, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है, मैंने पूरा 10-15 वीडियोस इसके ऊपर है, मैं तुम लोग को भेज दूंगा चाहिए तो, ओके। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब ये अपने टॉपिक से रिलेवेंट कैसे है? वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। I have a prism and I pass a white light through it. We know what prism does the best is it will undergo dispersion, right? We have seen that in 10th standard also. Okay, so what is going to happen is here we will get 7 colors का band. Here we'll get a spectrum. Spectrum मतलब band of 7 colors. Band of 7 colors in this case. This is known as spectrum, normal spectrum, right? A white light splits into 7 different colors, and this is how a rainbow forms, right? Water droplet acts as a small prism, white light passes through it, and then you get a 7 different colors that you have seen. बच्चों तुम्हारे जो स्पेक्ट्रम होते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। पहला, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझने की कोशिश करना बच्चों, ऑब्वियसली ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। सन इमिट कर रहा है लाइट, and that light is passing through a prism. Now what is going to happen? This prism will disperse light, and this will disperse all electromagnetic radiation. जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, सबको डिस्पर्स करेगा, सबका स्पेक्ट्रम बनाएगा, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बच्चों। सोचो कितनी एनर्जी खर्चा होती होगी इसमें, कितनी सारी एनर्जी खर्चा होती होगी बच्चों। और यही रदरफोर्ड ने बोला था बच्चों कि एक एटम हर एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गिव राइज करता है, इमिट कराता है। लेकिन ये गलत बात है बच्चों। अगर ऐसा होता तो ट्यूबलाइट में से दुनिया भर की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सब के सब निकलती, गामा रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज। अरे जिंदगी खराब, बोर में से एक्सरे जा रहा है, धूम 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 मर गए। समझ रहे हो? एन एक्सरे इज हार्मफुल, नॉट एट ऑल। यू कैन नॉट से कि एक्सरे ट्यूबलाइट चालू है और तुम्हारे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे, गामा रे निकल रहा है, खतरनाक, धूम धूम धूम, कैंसर हो गया, बोन खराब हो गया, ये हो गया, वो गया। नहीं होता ना बेटा ऐसा, क्योंकि सब टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से ऐसा हो रहा था बच्चों। ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता
तो ट्यूबलाइट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है, सब कुछ निकलता, एंड वी कुड एक्चुअली हम सर्वाइव नहीं कर पाते, जिंदगी खराब हो जाती। यही रुदरफोर्ड का प्रॉब्लम था। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम, वो अपने को देखने मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब क्या, स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एमिट होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, किसी सोर्स से आया है, ठीक है, तो ये कोई पर्टिकुलर रेडिएशन इमिट कर रहा है ना। जैसे येलो, जैसे सम एग्जांपल ग्रीन कलर हो सकता है, यूवी रेडिएशन हो सकता है, जैसे स्पेसिफिक टाइप के, ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट कर रहा है, ठीक है, ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन, है ना। इसको हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। अब तुम बताओ क्या अच्छा है बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम अच्छा है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अच्छा है? लाइन स्पेक्ट्रम अच्छा है, बिकॉज ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। और ये इमिट कैसे करते हैं बच्चों, थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं अपन, ये व्हाट एक्चुअली हैपेंस बच्चों, होता क्या है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में होता है, तो जब रेडिएशन उसको मिलता है ना बच्चों, समझो ट्यूबलाइट में से लाइट कैसे आ रही है, तो समझने की ट्राई करते हैं इंटरनली क्या हो रहा है। तो लाइट जब आती है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है बच्चों, तो इट इमिट्स एनर्जी, इट इमिट्स एनर्जी। ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट विल इमिट एनर्जी बच्चों, वो एनर्जी इमिट करेगा। और एनर्जी का एक लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, हीट भी एनर्जी का फॉर्म है। तो अपने को इसके लिए ट्यूबलाइट में से बच्चों, बल्ब में से लाइट निकल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपन ने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, एनर्जी पास की, तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जंप करेगा, ठीक है, जंप करेगा, जंप करेगा। और जब जंप करेगा तब लाइट निकालेगा, एनर्जी निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन बच्चों, ठीक है बच्चों। और वापस वो जंप भी करता है, नीचे आने के बाद वापस ऊपर भी जाता है, नॉट एन इश्यू बच्चों। लेकिन मुद्दा यही है कि जब वो जंप करेगा बच्चों, तो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म, और फोटोन मतलब क्या, लाइट। तुम्हारा लाइट के जो पार्टिकल्स है वो फोटोन है, डुम 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 डिश 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 डिश। तो बेसिकली निकल क्या रहा है, फोटोन निकल रहा है। तो जब बच्चों, तो सिंपल क्या मुद्दा है, पहले बचपन में ना बहुत डरता था कि भाई अंधेरा है, भूत रहेगा तो क्या करूंगा मैं। जैसे बड़ा हुआ, थोड़ा साइंस पढ़ा, तो समझ में आ गया, अंधेरा नहीं है बेटा, एब्सेंस ऑफ फोटोन है। और जब लाइट है तब लाइट नहीं है, फोटोन है बच्चों। तब से लाइट मेरा दोस्त बन गया, और भूत से डर लगता नहीं है बेटा, ठीक है। तो तुम भी ऐसे सोचना, ठीक है। जब अंधेरा हो तब अंधेरा नहीं है, फोटोन नहीं है सिर्फ। तो बस लाइट ऑन कर दो, फोटोन आ गए। और कैसे आए, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप करेगा, जब वो जंप करेगा तो वो कोई एनर्जी इमिट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम फोर्थ फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जंप मार रहे हो, तो तुम आवाज निकालोगे ना, साउंड एनर्जी निकालोगे। वैसे जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जंप मार रहा है, तो वो एनर्जी निकालेगा फोटोन के फॉर्म में, जो अपने को लाइट देगा। लाइट देगा तो दिखेगा, दिखेगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो मजा आएगा। ओके एनीवेज, आई होप क्लियर है बेटा।